Is it possible to attempt all 75 questions at the ZAT? I am sure that every year there are a few people who attempt everything and come back. Is it a good strategy? So it depends on what you are expecting from the test. If you look at the cutoffs that are there, वो generally 35 marks के आसपास होते हैं for 99th percentile if you are looking at it. तो यहाँ पे सारा का सारा टेस्ट अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है. बट नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस. सो व्हाट एग्जैक्टली टू डू? So in this video, I will try to discuss all these aspects and tell you what exactly does it mean to attempt X number of questions at the ZAT और कैसे उसको राउंड्स में सॉल्व करना चाहिए. सबसे पहले तो लास्ट 4 साल के कट ऑफ्स या स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल देख लेते हैं. 99th percentile is typically around the 33, 35, 36, 38 marks और ZAT 2023 was an exception जहाँ पे 99 percentile was at 43 marks. तो काफ़ी हाई स्कोरिंग टेस्ट था. But then again, ZAT 25 was also relatively high scoring. Now, if you look at the pattern, the progression that we have here, ZAT 26, I would assume is going to be slightly difficult. So ZAT 22 was difficult, 23 was very easy, 24 was difficult, 25 was pretty easy. तो 26 जो है वो थोड़ा सा difficult होना चाहिए, ये expectation है. But then again, all said and done, if you are somewhere in the early to mid 30s, there is a very good chance that you are going to get a call from XLRI for both of their programs. तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर हमारे लिए. अब हम इसको परस्यू कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन गिव अप टू 3 मिनट्स पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज. तो क्वेश्चंस होते हैं 75. से फॉर एग्जांपल यू आर एमिंग टू गेट अ स्कोर ऑफ 40 मार्क्स. अगर 40 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो जैट के अंदर अटेम्प्टिंग ओनली 40 क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस स्ट्रैटेजी फॉर 2 रीजंस. वन रीजन इज जैट के अंदर एक्यूरेसी को प्रेडिक्ट करना बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल. द सेकेंड थिंग इज यू ऑल्सो गेट नेगेटिव मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस. So beyond 8 unattempted questions, you are going to invite a negative of 0.1 marks per unattempted question. So let's say for example 20 questions ऐसे हैं जो attempt नहीं किए हैं, तो वहाँ पे तुमको 2 मार्क्स का नेगेटिव मिल सकता है beyond 8 questions of course. तो यहाँ पे you have to understand नेगेटिव मार्किंग ऐसे भी काम करती है. So you have to build a buffer. So इसका मतलब क्या बन जाता है? You have to ensure that you are attempting at least 44-45 questions correctly, so that even if थोड़ा सा स्कोर पीछे चला जाए तो भी एक 99 percentile अपनी गारंटी हो सकती है even in the easiest ZAT test. अगर ZAT थोड़ा सा difficult आ जाता है then you have to ensure that you are getting 37-38 marks for sure, because negative marks थोड़े से पीछे लेके चले जाएंगे इसको. But all said and done, it means that you can afford to spend around 2.5 to 3 minutes per question. Also there are no sectional time limits, which means that you can afford to solve it in rounds. अपने हिसाब से उसको strategize कर सकते हो. CAT जैसे कोई restriction नहीं है that you have to attempt a certain number of questions at a certain point in time. ऐसी कोई यहाँ पे problem नहीं है. So that is not something that should bother you at all. Round 1 के अंदर I will suggest that you look at VALR first for 35 minutes. उसके बाद decision making for the next 35 minutes and QA for 50 minutes. Now I'm not expecting you to solve the entire thing. What I'm expecting is for you to solve the VA questions entirely. So vocabulary based questions, critical reasoning based questions, grammar based questions, jumbled paragraphs, cartoons, maybe a poem, ये सारे क्वेश्चंस खत्म कर लो. आरसीज के अंदर अगर कुछ इंटरेस्टिंग आरसी दिख रहा है, एक आधा आरसी, तो वो भी कर लेना. अगर नहीं दिख रहा है तो यू कैन लेट गो ऑफ द वीए सेक्शन आफ्टर सॉल्विंग मे बी अराउंड 13, 14, 15 क्वेश्चंस, तो छोड़ सकते हो वहां पे. फिर आता है अपना डिसीजन मेकिंग सेक्शन. डिसीजन मेकिंग सेक्शन के अंदर आई विल एक्सपेक्ट यू टू गो थ्रू ऑल दी 7 केसलेट्स दैट यू आर मोस्टली गोइंग टू गेट. उसके अंदर से आई विल एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व 4 केसलेट्स एटलीस्ट. तो 12, 13, 14 क्वेश्चन अगर कर देते हो इन 35 मिनट्स, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. देन कम्स द क्यूए सेक्शन. नाउ क्यूए सेक्शन के अंदर ऑफ कोर्स द रिलेटिव वेट इज ऑल्सो प्रेटी हाई. 28 क्वेश्चंस क्यूए के होते हैं, 21 डीएम के होते हैं, 26 वीए के होते हैं. तो क्यूए का वेट थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू द अदर सेक्शंस, व्हिच आल्सो मींस दैट यू कैन इन्वेस्ट मोर टाइम. एंड इन द दैट यू लुक एट इट, क्यूए के अंदर ज्यादा सर्टेनिटी होगी. सो फर्स्ट राउंड के अंदर क्यूए में आई विल सजेस्ट दैट यू इन्वेस्ट 50 मिनट्स. तो ये तो हो गया यहाँ पे 120 मिनट्स, बट अपने पास होते हैं 170 मिनट्स. सो माई राउंड 2 विल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 50 मिनट्स. अब उन 50 मिनट्स के अंदर आई विल अगेन प्रायोरिटाइज डिपेंडिंग ऑन विच सेक्शन आई फाउंड टू बी द ईजिएस्ट. सो अगर मुझे डीएम काफी ईजी लगा था और मुझे लग रहा है कि नहीं एक दो और सेट्स में मैनेज कर सकता हूं, देन आई विल गो एंड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस फ्रॉम द डीएम सेक्शन. सिमिलरली वीएलआर के अंदर भी आई विल गो अहेड एंड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस फ्रॉम द वीएलआर सेक्शन जो मुझे अचीवेबल लग रहे हैं इन राउंड 2. एंड क्यूए ऑल्सो, जो अगर मेरे से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, आई विल गो फॉर दैट. फाइनल अगर मैं देखूं कि कितना टाइम लगाना चाहिए, आई विल से दैट VALR एंड DM दोनों के अंदर 45 to 50 minutes is what you might want to invest, and in terms of quant you might want to invest somewhere around 70 to 80 minutes. So that is typically going to be the split, especially if you are decently good at quant. There will be a lot of stuff that you will be able to solve अगर मैं उसको टाइम देता हूं तो. इन दिस केस अगर मैं बहुत ब्रॉडली बात करूं,
R1 is going to be for cutoffs. So make sure that in the first 120 minutes you are crossing that 95th percentile. उसके बाद जो होगा वहाँ पे थोड़ी सी गैम्बलिंग होगी, थोड़ा सा वहाँ पे यू विल स्ट्रगल विद सम क्वेश्चन यू माइट सॉल्व इनकरेक्टली इन दी फर्स्ट गो और फिर वापस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो सेकेंड राउंड जो होगा वो तुमको 99 परसेंटाइल या उसके भी बियॉन्ड आराम से लेके जाएगा. दैट इज जनरली द स्प्लिट दैट एग्जिस्ट. अब इन सब के अंदर डू नॉट गेट इन टू द निटिग्रिटीज ऑफ द अनअटेम्प्टेड नेगेटिव मार्किंग. उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यू कैन वॉच दैट वीडियो, जहाँ पे आई हैव डिस्कस्ड हाउ एग्जैक्टली डज द नेगेटिव मार्किंग स्कीम वर्क फॉर द ज़ैट. सो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग को बहुत सीरियसली मत लेना. इफ यू वांट यू कैन कीप अ बफर ऑफ 2 to 3 करेक्ट आंसर्स विच यू कैन later kind of distribute among the unattempted negative marking. So अगर 35 target कर रहे हो, make sure that you are solving 2 or 3 questions extra compared to whatever your target is. So how many to attempt question आ जाता है. It depends completely on what you are benchmarking it against. Thankfully we have had 2 years 24 and 25 जहाँ पे difficult और easy ZAT दोनों अपने को दिख गए हैं. So 25 was an easier test, 24 was a slightly more difficult test or possibly the most difficult test of recent years. तो राउंड 1 आफ्टर 120 मिनट्स यू हैव टू फिगर आउट कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है टेस्ट की. यू कांट डिसाइड इन द फर्स्ट 5 मिनट्स की टेस्ट डिफिकल्ट है, नहीं. You have to go through all the 3 sections, you have to go through almost all the questions that are there and only then will you be able to decide कि कितना difficult test है. So अगर let's say for example you have attempted around 35 questions at the end of 120 minutes, then you know that you are sitting in that 24 equivalent test, थोड़ा सा difficult test है जहाँ पे there is going to be a bit of an issue in terms of solving questions. तो वहाँ पे पता चल जाता है कि भाई difficult test है ये. अगर 45 अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, 50 अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, दैट बेसिकली टेल्स यू दैट इट इज अ स्लाइटली इजियर टेस्ट. तो यहाँ पे ज़ैट 25 की याद आ जानी चाहिए, बिकॉज इफ आई एम सेइंग 45 अटेम्प्ट्स, व्हाट डज इट मीन? आई एम नॉट गोइंग टू गेट ऑल 45 राइट. आई एम गोइंग टू गेट से 35 करेक्ट, 10 रॉन्ग और 36 करेक्ट, 9 रॉन्ग. दैट काइंड ऑफ अ स्प्लिट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. उसके बाद मेरे 30 क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे अगर मैं 2.2 मार्क्स का नेगेटिव भी लेके चलूँ, सो व्हाट एम आई गोइंग टू एंड अप विथ? आई एम गोइंग टू एंड अप विथ समवेयर अराउंड 32-33 मार्क्स विच विल टेक मी टू दैट 95ish परसेंटाइल at the ZAT. So that is what I am looking at in this particular context, right? So ये हो जाता है मेरा उस टाइम का स्कोर जो मुझे 95 परसेंटाइल तक लेके जाएगा potentially. You have to understand that QADI is the decider. So although ZAT के अंदर I recommend people who are good at VA, RC and in terms of decision making to appear for the test, I think QADI is the solid decider because उसके अंदर correct answers होते हैं to each question. Whereas VA and DM के अंदर there is a chance that what you think is the answer might not actually be the correct answer. ऐसे हो सकता है. तो यहाँ पे QADI is going to be the decider. At lower percentiles especially what happens is QADI will contribute to 50% of your score at least. तो अगर मुझे 40 स्कोर करना है, it is going to be almost impossible to hit a 40 without scoring at least a 16 or 17 or 18 at the QA section, right? So 40 to 50% of your score is going to come from one section which is the QADI section. That is going to be the decider. तो उसको थोड़ा ध्यान देके करना है अपने को. अगर more than 15 attempts मेरे हो रहे हैं, right? So QA के अंदर if the at the end of round 1 अगर मेरे 15 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं, आई नो दैट आई एम सिटिंग फॉर अ ZAT 25 इक्वेलेंट, वहाँ पे मेरा रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होने वाला है. इट सीम्स टू बी एन ईजियर टेस्ट. अगर 10 से 12 अटेम्प्ट हो रहे हैं, देन आई एम pitting it against ZAT 24 and that is what you have to look at in this particular context. तो QADI के अंदर अगर ज़्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं, that tells you that ZAT is on the easier side in that year, and अगर QADI में कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, it will again tell you that ZAT is on the tougher side that year. अब यहाँ पे सबको एक चीज़ होती है कि भाई गैम्बल कब करना है और कैसे करना है. अगर गेस वर्क करना है तो कैसे कर सकते हैं. सो सबसे पहली चीज़, गैम्बलिंग इज नॉट इक्वल टू ब्लाइंडली गेसिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस. सो इफ यू हैव सीन व्हाट आई डू एज वेल, मैं जनरली गैम्बलिंग करता हूँ. मैं जब गेस वर्क करना है तब मैं करता हूँ, बट मैं कैसे करता हूँ? आई नीड टू हैव अ गुड बेस. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई नो दैट आई एम गोइंग टू गेट 38 मार्क्स एट दी ZAT एंड मेरे हिसाब से यार कट ऑफ जो है वो 33-34 तक होने वाली है. तो मैं क्या बोलूँगा? आई नो दैट 3 or 4 मार्क्स इज व्हाट आई हैव दैट आई कैन गैम्बल विथ. सो इवन इफ आई अटेम्प्ट 12 मोर आंसर और सारे के सारे अगर गलत हो जाए तो भी मुझे -3 ही मिलेगा, तो भी आई एम कंफर्टेबली गोइंग टू गेट अ कॉल फ्रॉम XLRI, राइट? तो वहाँ पे अगर मैं 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ, देन एंड इफ आई अटेम्प्ट देम विद फुल फोकस, डेडिकेशन, आई हैव नैरोड इट डाउन टू 2 आंसर्स और समथिंग, नाउ आई हैव अ 50% चांस ऑफ गेटिंग दोस राइट. तो मैं क्या करूँगा? वो 12 क्वेश्चंस जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 50% चांस है, वो मैं अटेम्प्ट करूँगा. अब 12 में से अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रोबेबिलिटी यू शुड गेट 6 करेक्ट 6 रॉन्ग, which basically means that you are going even farther ahead because 6 correct 6 wrong मतलब 4.5 marks का benefit मिलेगा. And now you can again go ahead and attempt more questions as well. So typically that is how it snowballs. So you need to have some attempts, उसके बाद you will spend some attempts
if you are buying some guesses, right? So मैं attempts में से कुछ गिरवी रख रहा हूँ, in a way I'm going to loan those and then I'm going to purchase more attempts. Some of them might be good, some of them might be bad, and then I will keep on playing it till the time I finish the test, right? So ये मुझे करना है. गेस वर्क बिल्कुल आंख बंद करके सब चीज का आंसर मार्क करके मत आना. मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू गोइंग टू गेट राइट, व्हाट इज योर आइडियल स्कोर, व्हाट इज योर पोटेंशियल स्कोर, ये सब चीजें सोच लो एंड देन डिसाइड वेदर यू वांट टू गेस और नॉट. अब यहाँ पे अगर मुझे देखना है तो आई विल लुक एट डबल डिजिट स्कोर्स इन VALR एंड DM. सो लास्ट कुछ सालों में VALR एंड DM हैव बीन स्लाइटली ऑन द इजियर साइड, तो वहाँ पे 10 प्लस स्कोर निकालना हैज बिकम पॉसिबल. इनफैक्ट इफ यू लुक एट दी स्कोर वर्सेस परसेंटाइल फॉर दीज टू सेक्शंस, यू विल सी दैट वहाँ पे 11 12 तक भी कभी कभी 95 परसेंटाइल जाती है. बट इफ यू लुक एट दी सेक्शनल कट ऑफ फॉर दैट, यू विल सी दैट इफ यू गेट डबल डिजिट मार्क्स इन VALR एंड DM, आई थिंक यू शुड बी गुड टू गो. इतना फिर उसके बाद इशू नहीं आना चाहिए. अब उसके बाद क्या करना है, आई ओनली वॉन्ट टू मार्क दोज क्वेश्चन जहां पे मेरे पास 50% चांस है, जिसमें मैंने 3 ऑप्शंस डेफिनेटली एलिमिनेट किए हुए हैं और 2 के बीच में मुझे चूज करना है. एंड बोथ ऑफ देम सीम इक्वली प्लॉसिबल. ऐसा नहीं कि मैं उसमें भी गेस कर रहा हूँ. आई नो दैट दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, तो वहां पे आई कैन टेक अ गेस. तो मैं क्या करूंगा, आई विल लुक एट द सरप्लस दैट आई हैव एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सरप्लस आई विल अटेम्प्ट 50-50s. 50-50s के बाद आई विल अटेम्प्ट जहां पे 3 ऑप्शन के बीच में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, एंड देन आई विल बेसिकली स्टॉप इट. तो वहां पे मुझे मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे इफ यू गेट अ 38 एंड यू आर गेटिंग अ ZAT कॉल, और इफ यू आर गेटिंग अ 36 एंड गेटिंग एन XLRI कॉल लेट्स से, तो वहां पे दोनों ही जगह पे आई विल नॉट सी अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ योर कन्वर्जन पॉसिबिलिटीज. इफ यू प्रिपेयर वेल फॉर द GDPI तो 36 पे भी कन्वर्ट हो सकता है, बट 38 पे इफ यू आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ अ कैलकुलेटेड रिस्क, देन यू नो दैट यू हैव द चांस टू गो टू अ 40-41 एंड कंप्लीटली सील द डील. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड इवन इफ यू फॉल इट वोंट बी दैट बिग कि तुम्हारा कॉल निकल जाए. So make sure that you know exactly when you are waging more money, when you are waging more marks, especially when it comes to the ZAT, because I think it is a game of taking calculated risks. So जो मैं 8 time 99.9 plus percentile की बात करता हूँ, each and every time I have taken risks. I remember even in ZAT 2009 I think, or ZAT 2010, that was my first ZAT when I had taken it. I remember that even the toppers, people who used to do really well at the CAT used to attempt around 50 questions back then. जब मेरा first ZAT था उस time पे मैंने 71 attempts किए थे. So I have always been a selective risk taker when it comes to the ZAT. Even in the toughest of ZATs, ZAT 2011, I remember I had attempted far more than what other people had attempted. तो जहाँ पे भी मुझे half chances दिख जाते हैं मैं वो ले लेता हूँ, and that has worked for me over the last 8 attempts. I've taken ZAT 8 times. My lowest ZAT percentile has been 99.91. I attribute it entirely to the ability of being able to, or the ability of risk taking. So intelligent risk taking is very important when it comes to the ZAT. So make sure इसको practice करके जा रहे हो, आँख बंद करके आंसर मत गेस करके आ जाना, राइट? इट इज सिलेक्टिव रिस्क टेकिंग. इफ इट वर्क्स यू आर सॉर्टेड एज आई सेड. एंड सबसे लास्ट चीज, जीके में सब अटेम्प्ट करके आ जाना. इट इज गोइंग टू बी अ सेक्शन जहाँ पे यू माइट नॉट नो हाफ दी थिंग्स, बट कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. सो डोंट वरी अबाउट गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ रॉन्ग. इवन इफ यू गेट इट रॉन्ग इट्स परफेक्टली ओके. कोई इशू नहीं होना चाहिए. जीके में सब अटेम्प्ट करके आ जाओ. इफ इट गोज वेल दे माइट क्वेश्चन यू इन योर XLRI इंटरव्यूज कि क्या हो गया, मतलब इतना कैसे तुमको जीके आ गया करके. एंड इफ यू डोंट रियली डू वेल, इफ यू गेट 2 or 3 marks, लेट्स से फॉर एग्जांपल, दे माइट क्विज यू, कह रहे तुमको कुछ अवेयरनेस है भी कि नहीं. You can prepare for both eventualities, but make sure that you attempt everything in GK and come back. Whatever you get, you get. Whatever you don't get, it's okay. There is no negative marking. So make sure that you do everything in GK. Don't worry about GK as such. बाकी सारे questions के अंदर, बाकी सारे sections के अंदर focus करना. Try to attempt big. Mocks के अंदर भी try कर लो to attempt big and see if the results are working in your favor or not. If you are a good calculated risk taker, I am sure that you will be able to do really well when it comes to the ZAT.